Acids, bases, and salts. Let's start with how acids react with metals. Let's see, for example, HCl or hydrochloric acid. When hydrochloric acid reacts with water, it releases two ions. First is hydrogen ion and the second is chlorine ion. When sulfuric acid reacts with water, then also it produces two ions. First is hydrogen ion and the other is sulfate ion. When nitric acid reacts with water, then also it produces two types of ions. First is hydrogen ion and the other is nitrate ion. These are all strong acids. Let's see what happens when a weak acid reacts with water. Acetic acid is a weak acid. Okay, so when acetic acid reacts with water, then also it produces a hydrogen ion and acetate ion. Okay, so in all of these reactions, we notice that the positive ion is always the same. Okay, so from this you can determine, or you can conclude, or we can conclude that when acid reacts with water, it releases a hydrogen ion. Even when if acid does not react with water, it will release a hydrogen ion. All acids release a hydrogen ion, which is very important. Why it is very important? Because if they do not release this hydrogen ion, then no reaction will take place. अगर एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेगा तो एसिड के साथ जो भी रिएक्शन हम आगे करने वाले हैं वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ओके, सो एसिड्स मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ या फिर बेस के साथ अगर रिएक्ट कर पा रहा है तो वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है. ओके, लेट्स सी एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स. So in first reaction we did the experiment with zinc granules. Since zinc granules is solid, so we write this S in the bracket. Zinc granules react with dilute HCl. Okay, HCl. Since HCl is dilute and hydrochloric acid is mixed with water, so we put this aqueous sign here. These are the two reactants. Let's see what will be the products. Zinc displaces the hydrogen ion or the hydrogen atom from hydrochloric acid and forms hydrogen gas. Okay, so what is left behind? Hydrogen atom is displaced and it forms hydrogen gas. So zinc and chlorine is left. So zinc and chlorine मिलके बनाते हैं ZnCl2 और zinc chloride salt. Okay, zinc chloride salt. Moving on, if zinc reacts with sulfuric acid, same thing happens. Hydrogen atoms are displaced by zinc and forms H2 gas. This upward arrow is to show that hydrogen is a gas and gas always goes upwards. That is why this arrow. What is left? Zinc and sulfate. So zinc and sulfate मिलके बनाते हैं ZnSO4 और zinc sulfate salt. Zinc chloride. ओके, ये दोनों हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड. अब देखते हैं जिंक वीक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है. सो we will do a reaction with zinc and acetic acid. So
एसिटिक एसिड का जो लास्ट हाइड्रोजन है जिंक उसको डिस्प्लेस करता है एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस. ओके, व्हाट इज लेफ्ट? जिंक एंड acetate ion. So zinc will form zinc acetate. Okay, zinc acetate salt. So from all of these reactions we can conclude that acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. Okay, but not all metals react with acid. You are familiar with reactivity series, है कि नहीं? So जितने भी metals reactivity series में हाइड्रोजन से पहले आते हैं या वो हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं, सिर्फ वही मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं. लेकिन जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे रहते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं. इसीलिए दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स. और लेकिन हमने अभी एक एक्टिविटी में हमने अभी असाइनमेंट में कर्ड और कॉपर का रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. वो कैसे हो गया? वो इसलिए होता है क्योंकि कर्ड और हाइड्रोजन वो इसलिए होता है क्योंकि कॉपर और हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में दे आर वेरी क्लोज. ओके, कॉपर हाइड्रोजन के जस्ट बाद आता है, मतलब उनमें डिफरेंस काफ़ी कम रहता है, जिसकी वजह से जब कॉपर को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना होता है या फिर जब कॉपर को एसिड के साथ रिएक्ट करना होता है तो रिएक्शन का जो एंथैल्पी होता है या फिर रिएक्शन जिस सराउंडिंग्स में हो रहा है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कॉपर को हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने में मदद करता है, जिसकी वजह से कॉपर कैन रिएक्ट विथ द एसिड. अगर ऐसा नहीं होता तो कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता. बट ड्यू टू द सराउंडिंग फैक्टर्स जो कॉपर को मदद करते हैं, कॉपर का हेल्प करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए, इसी वजह से कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है. You have out of all of these acids हमने एक एसिड मिस कर दिया. That acid was nitric acid. Do you know nitric acid is the strongest oxidizing agent? क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसकी वजह से जब नाइट्रिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तब वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है. वो क्या करता है, नाइट्रिक एसिड में जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है और खुद रिड्यूस होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है. लाइक दिस जिंक एंड NO3 फॉर्म्स zinc nitrate. Nitrate is reduced to nitrogen dioxide and hydrogen is reduced to water. Okay, तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, या फिर ये तो हमारे एसिड और मेटल का रिएक्शन का जो समरी है या जो एसिड और मेटल का जो रिएक्शन इक्वेशन है इसके साथ तो टैली नहीं कर रहा है. इसके इट इज़ नॉट सिमिलर टू दिस. बट जिंक सिर्फ 2 मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस देता है. दोज 2 metals are magnesium and manganese. So when magnesium reacts with nitric
acid, it gives magnesium nitrate and hydrogen gas. Okay. Same way, when manganese reacts with nitric acid, it gives manganese nitrate and hydrogen gas. Okay, याद रहेगा. जिंक जितने भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. किसी भी और मेटल के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तब वो वाटर बनाता है, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है. ओके, along with their respective salt. Now, reaction of acid reaction with metal carbonate and or metal hydrogen carbonate. Acid plus metal carbonate or hydrogen carbonate gives salt plus carbon dioxide and water. Okay, let's see. Let the metal carbonate be sodium carbonate and the acid be HCl. So फर्स्ट तो हमारा CO2 हमें मिल गया, CO2 यहाँ से, फिर H एंड यहाँ से CO माइनस हुआ. ओके, CO, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन which reacts with hydrogen and it forms H2O. So बचा क्या, क्लोरीन एंड सोडियम. So sodium and chlorine will form sodium chloride. Okay, clear? Next, sodium hydrogen carbonate और सोडियम बाइकार्बोनेट और बेटा बेकिंग सोडा reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो यहाँ से CO2 CO3 बन गया CO2, left one oxygen left which reacts with these two hydrogen. तो क्या हुआ, 1 2 H2 एंड यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा तो H2O. तो क्या बचा यहाँ पे, Cl और Na. तो Na प्लस Cl क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड और हमारा घर में यूज होने वाला टेबल सॉल्ट. क्लियर? ओके, यहाँ पे हम लोग सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के साथ ही हम क्यों रिएक्शन कर रहे हैं. लेट्स ट्राई इट विथ सम अदर मेटल कार्बोनेट. लेट्स से कैल्शियम क्लोराइड प्लस HCl और carbonate is reduced to carbon dioxide. The oxygen that is left oxidizes hydrogen to form H2O. बचा क्या, Cl और CaCl2. टू HCl. ओके, कैल्शियम क्लोराइड.
So these salts, when they react with any acid, they make their corresponding salt. ये जो मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल कार्बोनेट है, जब भी ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपना करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड एज अ गैस एंड वाटर विच रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. क्योंकि ये सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर ही रहते हैं, इसीलिए ये सब एक्वस फॉर्म में रहते हैं. ओके, सो अगर यहाँ पे हमने एल्युमिनियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किया तो हमें क्या सॉल्ट मिलेगा, हमें एल्युमिनियम सॉल्ट मिलेगा. और उसके साथ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अगर हमने जिंक कार्बोनेट या फिर जिंक बाइकार्बोनेट के साथ हमने किसी भी एसिड का रिएक्शन करवाया तो हमें क्या सॉल्ट मिलेगा, जिंक सॉल्ट मिलेगा विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, तो कोई भी मेटल कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो अपना ही उसी मेटल का ही सॉल्ट बनाएगा. ओके, जैसे अगर सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एल्युमिनियम का सॉल्ट नहीं बनाएगा, वो किसका सॉल्ट बनाएगा, सोडियम का ही सॉल्ट बनाएगा. ओके, नाउ लेट्स टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, जो गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है. मे बी द गैसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड माइट बी हाइड्रोजन. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी गैस इस रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम एक लाइम वाटर के टेस्ट ट्यूब से पास कराएंगे. ओके, लाइम वाटर, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH2. लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, ये एक मिल्की सोल्यूशन दे देगा, मिल्की सोल्यूशन और वाइट इनसोल्यूबल सॉलिड बनाएगा अलॉन्ग विथ वाटर. तो ये जो वाइट इनसोल्यूबल सॉलिड है या फिर ये जो मिल्की सोल्यूशन है, ये क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट. हम इसे डाउनवर्ड एरो से डिनोट कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि एक प्रेसिपिटेट है और ये जो प्रेसिपिटेट है वो टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा लाइक दिस. व्हेन CO2 reacts with calcium hydroxide in the test tube, it makes the solution milky. After some time, what we will notice that test tube के lower surface पे test tube के bottom में कुछ white particles जमा होने लगेंगे. These white particles are calcium carbonate. ओके, विच आर इनसोल्यूबल. इसीलिए हम इसे डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं. मान लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन हुआ उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. तो पहले तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया और इसने कैल्शियम क्लोराइड बना लिया. लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो और भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ये रिएक्शन और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोडक्ट्स के साथ, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ भी रिएक्ट करेगा. सो व्हाट विल बी द रिएक्शन, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2. तो क्या बनेगा, कैल्शियम
बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक कलरलेस लिक्विड है। ओके ओके सो हम नोटिस करेंगे कि कुछ देर बाद अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और इस टेस्ट ट्यूब में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और इस टेस्ट ट्यूब इस सोल्यूशन को एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये जो मिल्की सोल्यूशन है वो धीरे 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 कलरलेस हो जाएगा और यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट का पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बचेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके ओके नाउ कमिंग टू द ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर्स। स्कूल में भी फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे, किसी किसी के घर में या फिर बिल्डिंग में भी फायर एक्सटिंग्विशर होगा। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये काम कैसे करता है? ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आग को बुझाना। हम लोग एक सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर खुद बना सकते हैं। हाउ? बाय यूजिंग सिंपल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक बेकिंग सोडा एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये काम कैसे करता है? सो व्हाट हैपन्स दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H2SO4 क्या बनाता है? सबसे पहले तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सल्फेट। ओके सो सोडियम सल्फेट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज होगा फ्रॉम द नोजल ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर और ये कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में हेल्प करेगा। यू माइट आस्क हाउ? तो कहीं भी कोई भी बर्निंग रिएक्शन होता है या फिर कोई भी चीज़ जब जलता है तो इट इज़ अ कंबशन रिएक्शन। कोई भी कंबशन रिएक्शन होने के लिए यू नीड ऑक्सीजन। लेकिन जब हम किसी भी बर्निंग चीज़ पे, किसी भी जलते हुए चीज़ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का सप्लाई को कट कर देता है, जिसकी वजह से वो जलता हुआ चीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कंबशन रिएक्शन हो नहीं पाता और वो जलना बंद कर देता है। ओके सो दिस इज हाउ soda type fire extinguishers work. Now coming to reaction of acids with bases. Reaction of acids with bases. All of you have heard about neutralization reaction. So neutralization reaction में क्या होता है? Acid plus base gives salt and water. Okay, let's say for example you have all heard about phenolphthalein. phenolphthalein एक बेस इंडिकेटर है क्योंकि वो सिर्फ बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर देता है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था कि 3 बेसिक इंडिकेटर्स का नाम बताना है।
Basic indicators means those indicators which give a reaction only in the presence of base. For example, टर्मरिक तभी रेडिश ब्राउन होता है जब वो बेस के प्रेजेंस में होता है. फिनोल्फ्थालीन पिंक तभी होता है जब वो बेसिक सोल्यूशन में होता है. अनियन तभी अपना स्मेल लूज करता है जब उसे हम बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं, है कि नहीं. दीज आर सम ऑफ द बेसिक इंडिकेटर्स जो सिर्फ बेस को इंडिकेट करते हैं, ये एसिड को इंडिकेट नहीं करते हैं. ओके, सो व्हाट विल डू, हम लोग NaOH सोल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स फिनोल्फ्थालीन का डालेंगे. जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन है वो पिंक हो जाएगा. अब इस पिंक सोल्यूशन में हम लोग कुछ ड्रॉप्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डालेंगे, तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एसिड ने बेस का जो इफेक्ट है इसको कैंसिल कर दिया. जैसे फिजिक्स में होता है ना कि ईच एंड एवरी रिएक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट, ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वैसे ही यहाँ पे एसिड ने बेस का इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और ये सोल्यूशन कलरलेस हो गया. ठीक है, फिर अगर हम इस कलरलेस सोल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स NaOH का दोबारा से डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन फिर से पिंक हो जाएगा. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बार बेस ने एसिड का इफेक्ट को कैंसिल कर दिया. यहाँ पे इसमें अगर हम दोबारा से HCl डालेंगे इस पिंक सोल्यूशन में तो ये फिर से कलरलेस हो जाएगा. ठीक है, तो ये पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक बार यहाँ पे एसिड ने बेस का इफेक्ट को नलीफाई किया और यहाँ पे बेस ने एसिड के इफेक्ट को नलीफाई किया. ओके, तो जब भी एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे का इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं या फिर उसे कैंसिल कर देते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है. मतलब उसमें ना एसिड का प्रॉपर्टी होता है ना बेस का प्रॉपर्टी होता है. ओके, लेट्स सी. सबसे अच्छा और सबसे सिंपल रिएक्शन है हमारा NaOH और HCl का. सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होता ही होता है. सेकेंड, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच. तो NaOH जो है वो नेगेटिव आयन क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और बनाएगा NaCl, और पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन जो है वो NaOH और OH के साथ बॉन्ड फॉर्म करके बनाएगा H2O. सो बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. ओके, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 gives salt, potassium sulfate and water. Okay, now coming to magnesium hydroxide plus nitric acid gives magnesium nitrate and water. Okay, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्ट करेगा और वाटर देगा. अगर ये किसी दूसरे किसी दूसरे मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन
dioxide or any other nitrogen compound. Okay, moving on. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में हम लोग बहुत जगह पे देखते हैं, जैसे इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड. आई वांट यू टू राइट 5 neutralization reactions along with their chemical equation. Okay, now reaction of metallic oxides with acid. So क्या होगा? metallic oxide plus acid gives salt plus H2O. ओके, सो हमने बहुत सारे मेटालिक ऑक्साइड बनाए हैं. पहला तो हमने बनाया नहीं है, बट हमें पता है कैसे बनाना है. पहला मेटालिक ऑक्साइड बना था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, व्हेन मैग्नीशियम रिबन वाज बर्न्ट इन ऑक्सीजन. सेकेंड मेटालिक हाइड्रोक्साइड जो हमने बनाया था दैट वाज ऑफ कॉपर ऑक्साइड. जब कॉपर को हमने ऑक्सीजन में, एयर में जलाया था तो हमें एक ब्लैक सॉलिड मिला था, दैट वाज कॉपर ऑक्साइड. तो अभी हम उसी के साथ ये रिएक्शन करेंगे. CuO प्लस HCl गिव्स H2O बनेगा. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलके बनाया वाटर H2O. तो बचा क्या? कार्बन और क्लोरीन. सो CuCl2 और